I hope I am audible to each one of you, and if I'm not audible, just reply in the comment box so I rectify the problem if there is any at my side. I think we can start, and I do apologize in the start if there is any sort of disturbance in sort of sound or internet connection or disruption in the recording of the video. I do apologize in the very start. So let's get started with the biochemistry USMLE step one. So the starting point is कि जब भी last lecture में जो मैंने आपको बोला था कि you will use first aid for your step one and everything. तो जब आप first aid सबसे पहले खोलते हो तो the system or the subject that you confront is biochemistry. और biochemistry इस तरह का subject है कि it's very elaborate and it has a lot of stuff in it. तो you get confused. एक तरफ genetics है, एक तरफ cellular portion है. फिर at that time you have metabolisms coming across you. तो you get confused कि either वाकई में USMLE is a easy thing or not. क्योंकि biochemistry in itself is such a big or difficult subject. So that was the reason I wanted to start with the biochemistry to like unwind some of the myths related to the biochemistry. कुछ लोग कहते हैं कि we should not do biochemistry और या end phase को करना चाहिए या ये है कि it's a difficult subject हम इसको छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते. We'll be talking about all those things in today's webinar. Alongside I will be discussing the whole biochemistry thing in a quick way. जो high yield points होंगे जो मैंने खुद एग्जाम में नोटिस किए थे या वो चीजें जो NPMEs में थी या फर्स्ट एड को 6-7 महीने पढ़ने के बाद what I concluded कि कौन सी चीज कैसे पढ़नी चाहिए. I will be discussing about those things. Alongside I have discussed 2 or 3 vignettes या जिन्हें आप क्वेश्चंस कहते हैं फ्रॉम YouWorld ताकि you'll get an idea कि how the questions are asked in YouWorld. बट मेरा मेजर फोकस इस वेबिनार में ये होगा कि I will skim through the first aid and I will let you know about each and every single topic कि इसको कैसे लेकर चलना है and how you prepare it in your preparation और इसको याद करने का retain करने का क्या तरीका हो सकता है possible. So these were the things these will be the things we'll be discussing about in this session. So let's get started. Let me move to the next slide. I'm not a big fan of slides, so ये slides just for formality में बनाता हूँ. Otherwise, I think we can learn in a more better way without slides. Let's just move to the next slide. If okay, I hope the next slide is visible to you guys. And if there is any sort of input you can give in the chat box, I'll be seeing it alongside. So yeah, so contents क्या है अच्छा मोस्टली लोग जो थे लास्ट वेबिनार में भी they were from first year or second year of their medical school. So biochemistry जो है वो कन्वेंशनल जो हमारा सिस्टम होता है MBBS का सिस्टम होता है उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में it makes a big portion of your prof exams or final exams. फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ रहे होते हो बेसिक बायोकेमिस्ट्री लाइक एसिड बेस बैलेंस एंड कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स वगैरह और सेकंड ईयर में आप फिर मेटाबॉलिज्म्स एंड टेक्निकल चीजों से रिलेटेड पढ़ रहे होते हो. तो ये आपका कन्वेंशनल सिस्टम में बायोकेमिस्ट्री होता है. नाउ अब लोग पूछते हैं कि if they are in first year and second year and how they will tackle biochemistry in their first year and second year. और अब कुछ लोग इस तरह हैं जो कि साथ यूएसएमएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उसको भी साथ लेकर कैसे चल सकते हैं. यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन वुड बी कि आप लोग वो वाले रिसोर्सेज यूज करें जो आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी यूज करती है. लाइक फॉर इंस्टेंस if I am from KMU or from KPK तो KMU सजेस्ट करती है हमें पंकज सत्या यूज करने के लिए फॉर बायोकेमिस्ट्री. इसी तरह if you are from associated with RIFA तो RIFA लिपिड सजेस्ट करती है या फिर आप यूएचएस से हैं अकॉर्डिंग टू द यूएचएस जो कि आपको सजेस्टेड बायोकेमिस्ट्री की बुक्स होती हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको वो बुक्स यूज करनी चाहिए. अब उसकी जस्टिफिकेशन मैं ये दूंगा कि आई पर्सनली यूज्ड पंकजा इन माय फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर. दो मैंने उसको बहुत रिलीजियसली नहीं पढ़ा था. आई स्टडीड इट इन लास्ट 2 or 3 months लेकिन वो एक तरह से ब्रॉडर वे में हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं जो कि आपके एग्जाम आउटलाइन को कवर कर रही होती है. लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं कैप्लन की बात करते हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो बायोकेमिस्ट्री है वो काफी प्रिसाइज और टू द पॉइंट है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि बीइंग इन फर्स्ट ईयर और इन सेकंड ईयर यू शुड गो फॉर द लॉन्ग बुक्स जो कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपको सजेस्ट कर रहा है. जैसे मैंने पंकज सेल्फ पढ़ी थी और कुछ लोग सत्या पढ़ते हैं या दूसरी बुक्स पढ़ते हैं. अब दूसरा इसमें जो ये तो आई गेस चीज क्लियर होगी कि आपको कौन से बुक्स फर्स्ट सेकंड ईयर में यूज करनी चाहिए. और इसकी रीजन भी मैंने बता दी कि जो आपकी यूएसएमएल रिलेटेड बुक्स होती हैं उनमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज काफी प्रिसाइज होता है जबकि बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स और फैक्ट्स जो होते हैं आपके वो हर बुक में डिफरेंट हो सकते हैं. तो मेक श्योर टू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर यू यूज पंकज एंड सत्या या जो भी आपकी रिकमेंडेड लिपिड पॉट है जो भी आपका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट कर रही है आप वो वाली बुक्स यूज करें. फिर सेकंड ओपिनियन जो है वो कैप्लन है. अच्छा कैप्लन इस तरह है कि वो इंटरमीडिएट है. वो ना कंप्लीटली यूएसएमएल ओरिएंटेड है ना वो कंप्लीटली आपका एग्जाम ओरिएंटेड है. वो इन बिटवीन है. तो कुछ लोगों को कैप्लन सूट करती है कुछ लोगों को कैप्लन सूट नहीं करती. लाइक मेरे पर्सनली क्लास वालों से जिन्होंने कैप्लन यूज की बट स्टिल देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कैप्लन में नहीं थी और उनके एग्जाम में आई थी और वो पंकजा से और दूसरी बुक से आई हुई थी. तो फॉर योर प्रॉफ एग्जाम्स यू हैव टू गो थ्रू योर द बल्कि बुक्स जो है आपकी उनको आपको गो थ्रू करना पड़ता है टू गेट गुड मार्क्स इन बायोकेमिस्ट्री बिकॉज़ इट इज अ बिग पोर्शन इन योर फर्स्ट ईयर एंड इन योर सेकंड ईयर. फिर जो थर्ड ओपिनियन है वो ये है कि वंस यू आर इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अब तो आपका बायोकेमिस्ट्री वाला जो था सेगमेंट वो खत्म हो गया. लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका बायोकेमिस्ट्री था अभी आपका बायोकेमिस्ट्री नहीं है. अब आप जो भी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है वो यूएसएमएल ओरिएंटेड पढ़नी है. अब आपको कौन सी रिसोर्सेज यूज करनी चाहिए. नाउ यू हैव टू यूज ओनली दोस रिसोर्सेज जो कि बहुत ज्यादा कंसाइज हो टू द पॉइंट हो और जिनमें वही वाले फैक्ट्स हो जो आपसे यूएसएमएल एग्जाम में पूछे जाएंगे. यू डोंट हैव टू रोम अराउंड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स और अ लॉट ऑफ स्टफ मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर इन थर्ड ईयर और इन योर फोर्थ ईयर तो उसके लिए आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर पे जंप कर जाएं और आई गेस दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर यू इन द लॉन्ग रन. आपको लॉन्ग बुक्स पे जाने की कैप्लन पे या स्पेशली फॉर द बायोकेमिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है. आप बस फर्स्ट ईयर को करेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ. दिस इज फॉर द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर पीपल या वो लोग जो कि आफ्टर द थर्ड ईयर या अपना स्टेप एग्जाम की तैयारी करें. तो ये आपका एक वो हो गया कि बायोकेमिस्ट्री के लिए रिसोर्सेज कौन से यूज करनी चाहिए. अगर आप कन्वेंशनल सिस्टम में है या अगर आप वो क्वालीफाई कर लिया और आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर फॉर यू नाउ. अच्छा फिर उसके बाद प्रोपोर्शन एंड वेटेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री. मैंने बहुत से लोगों को सुना है और लाइक वंस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएल देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू से कि बायोकेमिस्ट्री इज अ टफ थिंग टू डू एंड इज इट पॉसिबल कि हम लोग बायोकेमिस्ट्री को स्किप कर दें या छोड़ दें. तो व्हाट आई वुड से इज कि नो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ ये है कि बायोकेमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है. इसकी इंटीग्रेशन दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी है. फॉर इंस्टेंस अगर आप बायोकेमिस्ट्री में लीच-नीहन सिंड्रोम है. लीच-नीहन सिंड्रोम में एक चीज है दैट इज हाइपरयूरिसीमिया. हाइपरयूरिसीमिया जो है वो गाउट के साथ रिलेट करता है. तो जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो तो वहां पर जब आप लीच-नीहन पढ़ रहे हो तो वहां पर गाउट भी लिखा हुआ होता है. एंड देयर वाज दिस वन क्वेश्चन ऑन द यूवर्ल्ड जिसमें उन्होंने गाउट की सारी सिम्प्टोमोलॉजी दी हुई थी और आंसर्स में उन्होंने पूछा हुआ था कि जो डिजीज इस बंदे को है इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट
इज ऑटोसोमल रिसेसिव, वो लीश नीहन से रिलेटेड उन्होंने मतलब डिजीज पूछी हुई। तो इट मींस कि थिंग्स आर इंटीग्रेटेड ऑन योर स्टेप 1 और इसमें इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दो या एक सब्जेक्ट को आप बिल्कुल आउट ऑफ द साइड कर दो। यू हैव टू रीड इट। तो बायोकेमिस्ट्री ऑल्दो कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को ईजी लगता है, कुछ लोगों को मुश्किल लगता है। इट्स नॉट लाइक यू कैन लीव इट, यू हैव टू डू इट। तो ये हो गया इसका प्रोपोर्शन एंड वेटेज। बाकी जो आप देखते हैं जो एग्जाम शीट होती है उसमें 5 to 10% वेटेज लिखा हुआ होता है बायोकेमिस्ट्री का, तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है। वो इस तरह नहीं होता कि ये सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के जो 30 to 40 पेजेस है फर्स्ट एड के ये इसका वेटेज है। नो, इट्स लाइक अ इंटीग्रेटेड थिंग। तो उससे आप असेस नहीं कर सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री से कितना कंटेंट आ रहा है, कितना कंटेंट नहीं आ रहा, लेकिन एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि यू कैन नॉट लीव बायोकेमिस्ट्री इन योर स्टेप एग्जाम प्रिपरेशन। बाकी फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटजीज लाइक व्हाट वुड बी द पॉसिबल स्ट्रेटजीज फॉर डूइंग योर बायोकेमिस्ट्री। सी, मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लॉन्ग बुक्स पढ़ो, क्योंकि जब आप वो वाली बुक्स पढ़ते हो तो उनमें बहुत ज्यादा नॉलेज, फॉर एग्जांपल एक क्रेब्स साइकिल है तो क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज और वो नॉलेज आपको आपके प्रॉफ एग्जाम्स में भी काम आएगा। एंड वंस यू आर डन विद योर प्रॉफ एग्जाम्स, फिर जब आप शॉर्ट बुक की तरफ आओगे या फर्स्ट एड की तरफ आओगे तो फर्स्ट एड में उसी से रिलेटेड काफी कॉन्साइज और टू द पॉइंट नॉलेज होगा। तो जब आप लॉन्ग चीज से शॉर्ट चीज में आओगे तो आपको बहुत इजी लगेगी एंड यू विल बी मतलब एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा कि आप उसको इजीली याद कर सकोगे, क्योंकि उसमें पॉइंट्स थोड़े होंगे। आगे जब हम फर्स्ट एड को स्किम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लॉन्ग बुक्स हैं, कन्वेंशनल बुक्स हैं, उनमें कितना डिटेल में और यहाँ पे कितना प्रिसाइज लिखा हुआ है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यह है कि वो आपको साइकोलॉजिकली भी आपको हेल्पफुल होगी वो चीज। जब आप लॉन्ग बुक पढ़ के शॉर्ट बुक पर आओगे तो आपको इजी होगा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन याद करना या फिर उसको रिटेन रखना या व्हाटएवर आप जो भी कह रहे हैं उसको। तो ये एक रीजन था फॉर सजेस्टिंग द लॉन्ग बुक्स। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में एक फैक्ट, एक और चीज है, वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री इज फुल ऑफ फैक्ट्स। लाइक आप कोई कनेक्शन नहीं बना सकते एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ। फॉर एग्जांपल एक जगह एपिजेनेटिक्स का वर्ड लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, नेक्स्ट लाइन पे आपको एलिलिक हेटेरोजेनिटी के बारे में लिखा हुआ होगा। तो ये मतलब दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। तो इनमें कोई इस तरह नहीं होता कि आप कोई इंटीग्रेशन बनाओ और कोई फ्लो चार्ट बनाओ एंड एनीथिंग। इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ रैंडम फैक्ट्स जो कि एक जगह उन्होंने एसिमुलेट किए हुए हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इस तरह नहीं है कि आप ए टू जी हर चीज का कॉन्सेप्ट बनाओ उसको माइंड में रखो। इट्स मोर अबाउट क्रैमिंग द फैक्ट्स और फैक्ट्स भी वो जो कि आपस में इंटररिलेट नहीं कर रहे होते, मतलब बहुत डाइवर्स है बायोकेमिस्ट्री। तो दैट वाज द रीजन कि आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट बायोकेमिस्ट्री कि हम इसकी डिफरेंट चीजों को डिफरेंट स्ट्रेटजी से कैसे टैकल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एड का फर्स्ट पेज है जो बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो इनको हम साथ में रीड करते हैं एंड इट विल गिव यू एन आइडिया कि हाउ यू विल डील विद द बायोकेमिस्ट्री सेक्शन। और आई विल ट्राई टू पैराफ्रेज थिंग फॉर यू ताकि इफ यू आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से समझ लो और जो चीज अमेंड करने वाली है वो भी अपने साथ माइंड में रख लो। तो हाई यील्ड मटेरियल इंक्लूड्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, वही मिनरल्स, कोफैक्टर्स, एंजाइम डेफिशिएंसी एंड एवरीथिंग। व्हेन स्टडीइंग मेटाबॉलिक pathways emphasize important regulatory steps and enzyme deficiencies that result in a disease as well as a reaction targeted by pharmacological interventions. I hope you got this point कि जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हो या फुल आप पाथवे पढ़ रहे होते हो तो आप उसमें ए टू जी हर स्टेप याद करते हो। यू डोंट हैव टू डू दिस इन योर स्टेप 1 प्रिपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतना ज्यादा मटेरियल होता है और इतना ज्यादा मटेरियल को लाइक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन ब्रेन टू रिटेन ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड। तो आपको काफी सिलेक्टिव होना पड़ता है। जो मेन गेम होती है वो ये होती है कि हाउ सिलेक्टिव यू कुड बी और आपके पास आप कितने कैपेबल हो कि आप सिलेक्टिव चीजों को माइंड में रख सको जो आपके एग्जाम में काम आए। तो ये वही बात यहाँ पर कर रही है कि आपको हर स्टेप, जिस तरह क्रेब्स साइकिल हम फुल याद करते हैं ए टू जी, तो यहाँ पे आपको हर स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही वाले स्टेप याद करने हैं जो कि पैथोलॉजी एसोसिएटेड है या जहाँ पर कोई फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है। यहाँ पर रेट लिमिटिंग एंजाइम है, क्योंकि क्वेश्चन जो यूवर्ड है या स्टेप 1 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो पैथोलॉजी रिलेटेड आएंगे, वो हाई यील्ड एंजाइम रिलेटेड आएंगे, वो जनरल पाथवे से रिलेटेड नहीं आएंगे। तो ये आपको एक पाथवे मतलब एक आपके लिए ईज कर दिया इन्होंने कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग इन द बायोकेमिस्ट्री, यू हैव टू रिमेंबर दैट सर्टेन टॉपिक्स, सर्टेन पॉइंट्स और सर्टेन एंजाइम्स एंड स्टेप्स जिनमें जो कि मतलब पैथोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है या फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। उस पर हम बात करेंगे कि वो आप कैसे कर सकते हो आगे जाके। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर दोबारा लीशियन सिंड्रोम की एग्जांपल दी है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी थी। इज हायर यील्ड एंड मेमोराइजिंग एवरी इंटरमीडिएट इन द प्यूरिन सैलवेज पाथवे। तो अब बायोकेमिस्ट्री में आप देखोगे कि हर दूसरे पेज पे एक पूरा पाथवे बना हुआ होगा। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी स्टेप इन द पाथवे, बट आपको एक रफ स्केच माइंड में होना चाहिए पाथवे के बारे में और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, पैथोलॉजीज है, वो माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आएगा आपसे। तो ये इस तरह आप फिल्टर आउट कर सकते हो चीजों को व्हेन यू आर स्टडीइंग बायोकेमिस्ट्री। डू नॉट स्पेंड टाइम लर्निंग डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिज्म और फिजिकल केमिस्ट्री। डिटेल्ड केमिकल स्ट्रक्चर्स आर infrequently tested. However, many structures have been included here to help students learn reactions and the important enzymes involved. Familiarity with the biochemical techniques that have been, अच्छा यहाँ पे बात करते हैं कि अब वही बात है कि आपको हर चीज की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि लाइसाइल ऑक्सीडेज इज रिस्पांसिबल फॉर द रिएक्शन बिटवीन द इलास्टिन चेन्स। ठीक है, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है। अब आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि लाइसाइल ऑक्सीडेज जो है वो कौन सा एंजाइम है, वो किस पर एक्ट करता है, मतलब वो कितने टाइम में एक्ट करता है, दिस एंड दैट। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। जो चीज फर्स्ट एड में लिखी हुई है रिलीजियसली उसको माइंड में रख लो, उसको याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। एग्जाम में उससे हट की चीज आएगी नहीं, उसी से रिलेटेड आएगी। अगर आप फर्स्ट एड भी मतलब जितनी फर्स्ट एड बायोकेमिस्ट्री है ना वो भी आप रिलीजियसली और सही अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर द बायोकेमिस्ट्री सेक्शन इन योर स्टेप 1 एग्जाम। अच्छा, फेमिलियरिटी विद बायोकेमिकल टेक्निक्स। अच्छा, बायोकेमिकल टेक्निक्स हमने देखा होगा लोग जो हैं उनको याद कर रहे होते हैं कि अच्छा इसके बाद ये डालना है, इसके बाद ये डालना है। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। एक रफ आइडिया माइंड में रख लो। फॉर एग्जांपल एलाइजा टेक्निक है, तो एलाइजा टेक्निक होता क्या है, इसमें इम्यूनो एसेज यूज होते हैं या इसमें एंटीबॉडीज यूज होती हैं या इसमें एंजाइम्स यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। मतलब उसमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें पहले एक चीज डालोगे फिर ये डालोगे फिर ये डालोगे। यू डोंट नीड टू रिमेंबर और वेस्ट योर मेमोरी ऑन द स्टेप्स और ऑन द प्रोसेसेस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर हो गई। फिर रिव्यू रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री व्हेन स्टडीइंग फार्माकोलॉजी और जेनेटिक डिजीजेस, अ वे टू रिइंफोर्स एंड इंटीग्रेट द मटेरियल। ये वाली बात जो मैंने आपसे पहले की है कि थिंग्स आर इंटीग्रेटेड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप जो चीज पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपको इम्यूनो में पढ़ने को मिलेगी, वो आप बाद में कहीं ब्लड और हेमाटोलॉजी में भी पढ़े होगे, एमएसके में भी वो चीज पढ़े होगे। सो बायोकेमिस्ट्री इज इंटर लिंक विद अदर टॉपिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ओके दिस इज समथिंग जो कि बहुत वो है सेक्लूडेड है और साइड पर है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यू कैन लीव इट और यू कैन स्किप इट। तो ये हो गया आपका जनरल ओवरव्यू। अभी हम लोग जाएंगे फर्स्ट एड पर और फर्स्ट एड में कुछ अच्छा ये बायोकेमिस्ट्री के फर्दर सेक्शंस है। बायोकेमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर में क्या होगा, वही क्रोमोसोमल नॉलेज है आपका। उसके अलावा जो आपकी बेसिक प्यूरिन पायरिमिडीन्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो वाला नॉलेज है। फिर थोड़े से उसमें वो आ जाते हैं पाथवेज आ जाते हैं कि प्यूरिन ब्रेकडाउन होगा, पायरिमिडीन ब्रेकडाउन होगा। ये सारा मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर या क्रोमोसोमल लेवल पर जितनी भी चीजें हैं वो आप मॉलिक्यूलर सेगमेंट में पढ़ रहे होते हो। फिर सेलुलर सेगमेंट है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं और ऑर्गेनेल रिलेटेड डिजीजेस हैं, पैथोलॉजीज हैं। ऑल्दो आपने अभी अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे तो आपने इतनी पैथोलॉजीज नहीं पढ़ी होंगी सेल ओरिएंटेड, लेकिन यहाँ पर आप सेल ओरिएंटेड पैथोलॉजीज को भी डिस्कस करोगे एंड वो पैथोलॉजीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर देन जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स के बारे में बहुत से लोग होते हैं जिनका जेनेटिक्स मतलब इनहेरेंटली स्ट्रांग होता है। लाइक आई हैड अ वेरी स्ट्रांग जेनेटिक्स फ्रॉम माय एफएससी टाइम, तो यस इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर आपका जेनेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो देन आई वुड सजेस्ट यू शुड वर्क ऑन योर जेनेटिक्स, बिकॉज़ जेनेटिक्स इज अ पोर्शन जहां से आपके 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब व्हेन आई वाज गिविंग माय स्टेप 1 एग्जाम तो आई हैड 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम
जेनेटिक्स, और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जेनेटिक्स के क्वेश्चन थे, तो उसमें इतना वो नहीं था कि लाइक आई मस्ट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बल्कि वो एक बेसिक नॉलेज रिलेटेड था. इफ आई नो सम बेसिक नॉलेज अबाउट द जेनेटिक्स, आई विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन. तो जेनेटिक्स इज लाइक अ वेरी प्लस फॉर दोस हु नो द जेनेटिक्स वेल, और जो जेनेटिक्स में बहुत बुरे हैं, आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन जेनेटिक्स. बेसिक्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगाओ. दिस इज व्हाट यू दिस इज वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम व्हाइल मेकिंग योर बेसिक्स. बाकी दूसरी चीजों में बेसिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट जेनेटिक्स इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन. फिर मेटाबॉलिज्म है. अच्छा, मेटाबॉलिज्म आप अगर फ्रेश थर्ड ईयर में हो या इवन फोर्थ ईयर में हो, तो आपने 1-2 साल पहले मेटाबॉलिज्म सारे पढ़े होंगे, और वहां पे ये है कि आपने काफी डिटेल में, वही बात आ जाती है कि डिटेल में पढ़े होंगे मेटाबॉलिज्म. यहाँ पर क्या होता है स्टेप 1 में या यूएसएमएल में, कि आपके मेटाबॉलिज्म सारे होते हैं एट अ टाइम इन अ सिंगल गो होते हैं, लेकिन ओनली द इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड हाई यील्ड जो है पैथोलॉजी रिलेटेड चीजें होती हैं, वो होती हैं आपके मेटाबॉलिज्म पार्ट में. तो आपको सिर्फ सिलेक्टिव होकर याद करना पड़ता है. हर चीज, हर जो डायग्राम है वो याद नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन ब्रेन टू रिमेंबर ऑल द डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि अगर आप कर भी लेते हो तो इन द व्हाइल यू आर गिविंग द एग्जाम आप भूल जाओगे. इट्स 100% श्योर कि आप भूल जाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर द डिटेल ऑफ एवरी स्टेप. तो मेक श्योर कि आप अपना फोकस और एम्फेसिस उन्हीं पॉइंट्स, उन्हीं स्टेप्स पर रखो कि जो वाकई में टेक्निकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका एक तो टाइम भी कम कंज्यूम हो, और दूसरा आपका जो ब्रेन स्पेस है वो भी अवेलेबल हो फॉर द अदर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो ये हो गया आपका जनरल ओवरव्यू. उसके बाद हम फर्स्ट एड पर जाएंगे. यहाँ तक किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर बायोकेमिस्ट्री और हाउ यू हैव टू डील विद इट इन योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या मेडिकल स्कूल या जो भी, तो यू कैन आस्क. उसके बाद हम फर्स्ट एड को स्किम करेंगे थ्रू आउट, एंड आई विल बी डिस्कसिंग द हाई यील्ड पॉइंट्स एंड टॉपिक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक. तो यू हैव 2 or 3 minutes. मीनवाइल आई विल बी चेंजिंग द स्क्रीन, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो. अच्छा, ये सारी चीजें देखने में बहुत हॉरिबल लग रही हैं, बट वंस यू आर यूज्ड टू इट यू विल बी रियली गुड विद द थिंग्स. मतलब बंदा यूज्ड हो जाता है, देख देख के फिर बंदे को इतना वो खौफनाक नहीं लगती हैं सारी चीजें. अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अच्छा, आई हैड वन क्वेश्चन, लेट मी सी व्हाट वाज दैट. should use allowance for biochemistry. Yeah, that's what I'm saying. Because ये है कि जो आपकी शॉर्ट बुक्स होंगी, उससे आपका जो कन्वेंशनल एग्जाम होगा, प्रॉफ एग्जाम होगा, वो कवर नहीं होगा. उसमें क्योंकि आपका जो प्रॉफ एग्जाम होता है उसमें बायोकेमिस्ट्री के तकरीबन 30-40 एमसीक्यूज होते हैं यूजुअली, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द केपी के सिस्टम. और पंजाब में भी इसी तरह ही होगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है मतलब थ्रू आउट द पाकिस्तान. तो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री, और वो जो है बायोकेमिस्ट्री, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि इट्स अबाउट फैक्ट्स. और एक बुक में कुछ फैक्ट्स होंगे, दूसरी बुक में कुछ फैक्ट्स नहीं होंगे. एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर माय एक्सपीरियंस, कि जो आपका पंकजा है या सत्या है या फिर जो कन्वेंशनल लिपन कॉर्ड वगैरह वाली बुक्स हैं, उनमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, डिटेल्स होती हैं, सुपर डिटेल्स होती हैं, जो कि फर्स्ट एड ने स्किप की हुई हैं, या इवन कैप्लन ने भी स्किप की हुई हैं. तो यस, इफ यू वांट टू सिक्योर गुड, तो आई वुड सजेस्ट you should use a long books. And if you want to be in the mediocre pathway, for example you want to say कि अच्छा मैं 30 में से 20 सही करेक्ट मार्क कर लूं अपने प्रॉफ एग्जाम में, और साथ साथ मैं क्लिनिकली ओरिएंटेड चीजें भी ज्यादा कर लूं, तो फिर आप कैप्लन यूज कर सकते हो. लाइक कैप्लन इज अ इंटरमीडिएट इन बिटवीन. और आफ्टर योर थर्ड सेकंड ईयर, लाइक जब आपका फाइनल एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व ना हो या इंक्लूड ना हो, तो देन कैप्लन से भी बेहतर है, बल्कि बेहतर नहीं, यू शुड, दैट इज योर फर्स्ट एड. फर्स्ट एड में इट हैज ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज जो कि आपको स्टेप 1 के लिए चाहिए. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. यस, दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड. या आई हैव पुट इट ऑन रिकॉर्डिंग. यस, यूएसएमएल ओरिएंटेड बुक्स फॉर द मेन क्लिनिकल्स. वो मैंने बता दिया ना, 3 कैटेगरीज हैं. एक तो आपकी वो कन्वेंशनल बुक्स हैं, फिर दरमियान में कैप्लन है, एंड द थर्ड वन इज योर फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक व्हाइल यू स्टडीइंग फॉर योर बायोकेमिस्ट्री इन योर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, जब आपका मेजर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री ना हो. लेकिन अगर आपका मेजर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है, तो यू कैन चूज बिटवीन द कैप्लन एंड योर लॉन्ग बुक्स लाइक पंकजा. लेकिन फिर उसमें वो दोनों फैक्टर आ जाते हैं कि कैप्लन से आपको 50% हेल्प मिलेगी इन योर प्रॉफ एग्जाम्स, एंड 50% वो क्लिनिकल ओरिएंटेड होगा, तो यूएसएमएल में हेल्प आउट करेगा. जबकि जो आपकी कन्वेंशनल बुक्स हैं, वो 100% आपको प्रॉफ एग्जाम्स में हेल्प आउट करेंगी. I hope the things are clear. Now we'll move to the first aid. सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वी हैव द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में दिस इज व्हाट वी ऑल ऑफ अस नो. ये मतलब हमारा एफएससी नॉलेज है. यहाँ पर हिस्टोन के बारे में वी नो कि इट इज 8 ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर. H1 के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर कि H1 का क्या फंक्शन है यहाँ पर, राइट. इट बाइंड्स लिंकर डीएनए है, दे कैन आस्क अबाउट दिस. उसके अलावा ये नेमोनिक है लार्ज, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन डीएनए में होते हैं. अच्छा, ये पता होना चाहिए कि डीएनए पॉजिटिव नेगेटिव आरएन जो उसके अराउंड करता है, जो क्रोमेटिन होता है, डीएनए होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव है, हिस्टोन पॉजिटिव नेगेटिव है. ये बेसिक चीजें दैट यू हैव टू नो एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर. देन उसके बाद हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन का कांसेप्ट है. तो ये मतलब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है. देन इसमें डीएनए मिथाइलेशन का. अच्छा, लेक्चर्स की आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट द लेक्चर्स. तो इफ यू थिंक योर बेस इन बायोकेमिस्ट्री इज स्ट्रांग, लाइक अभी मैं वर्ड पढ़ रहा हूं ना, लाइक आई एम सेइंग डीएनए मिथाइलेशन, तो मुझे पता है कि डीएनए मिथाइलेशन में क्या होगा. डीएनए मिथाइलेशन में डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा. मिथाइल ग्रुप इज अ पॉजिटिव ग्रुप, और पॉजिटिव ग्रुप डीएनए के साथ जब अटैच होगा तो दैट इज डीएनए मिथाइलेशन, राइट. तो ये चीज मुझे पता है. अब मुझे इसकी डिटेल, लाइक इफ यू डोंट नो अबाउट इवन दिस थिंग, तो देन यू शुड गो फॉर लॉन्ग लेक्चर्स लाइक बूट कैंप है या फिर जो बेसिक लेक्चर्स हैं. लेकिन इफ यू नो अबाउट दिस थिंग एंड यू ओनली वांट टू नो कि अच्छा डीएनए मिथाइलेशन का मुझे पता है, अब मुझे बताओ कि यूएसएमएल में इसका क्या फंक्शन, देन यू शुड वॉच बीएनबी के लेक्चर्स. बीएनबी के लेक्चर्स में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा. वो डीएनए मिथाइलेशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो जितनी आगे बाकी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको वो मतलब स्लाइड की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देगा. दैट्स व्हाट द बीएनबी और बूट कैंप विल डू. तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द लेक्चर्स, कि आपकी नॉलेज डिपेंड्स कि आपकी नॉलेज किस लेवल पर स्टैंड कर रही है और आपने उसके लिए कितना पढ़ना है. अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, दैट इज डिसएबिलिटी डीएनए मिथाइलेशन इज इंप्लिकेटेड इन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. ठीक है, अब ये सॉलिड फैक्ट है, ये आपको याद करना है. लाइक इसके पीछे कोई आपको कांसेप्ट की जरूरत नहीं है, कोई आपको डिटेल की जरूरत नहीं है, एक सॉलिड फैक्ट है जो आपको याद करना है. अब जब मैं जब भी फर्स्ट एड पढ़ता था, मैंने ये वाला पॉइंट जो था, मैं इसको बार-बार रिपीट करता था. मैंने 100 टाइम्स ये वाला पॉइंट रिपीट किया होगा ऑलमोस्ट, कि डीएनए मिथाइलेशन जो है वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में होती है. और ये सॉलिड रटा है या क्रैमिंग है या याद करना है, जो भी आप इसे कह लें, इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बन रहा. बाकी उसके पीछे, उसके अलावा जो ये वाली चीज है, डीएनए मिथाइलेशन इज इन इम्प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग. तो अब इम्प्रिंटिंग आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज इम्प्रिंटिंग. अगर नहीं समझ आ रहा तो गूगल पे लिख कर देखो, डेफिनेशन समझ आ रही है, गुड. नहीं समझ आ रहा फिर यूट्यूब पे रैंडम वीडियो खोल के देख लो इम्प्रिंटिंग से रिलेटेड. दैट्स हाउ यू विल गो थ्रू विद योर बायोकेमिस्ट्री थिंग. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया. फिर ये हिस्टोन मिथाइलेशन है, हिस्टोन एसिटाइलेशन है. फिर आगे इनकी एग्जांपल्स होती हैं, लाइक थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इज एल्टर्ड इन एसिटाइलेशन, इज एल्टर्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर. अब ये फैक्ट है सॉलिड, ये आपको याद करना है. ये इसके लिए आपके पास कोई नॉलेज बेस होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी होने की जरूरत नहीं है. अब कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो ये वाला एक लाइन पढ़ेंगे एंड दे विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया हुआ है, ये इसकी लॉजिक कहां से बन रही है, एंड वो 1 घंटा अपना इसी चीज जाया कर देंगे कि अच्छा वी नीड टू फाइंड द लॉजिक फॉर दिस थिंग. यू डोंट नीड टू फाइंड लॉजिक इन सच सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स और सच सॉर्ट ऑफ लाइंस. तो ये आपको टेक्निक आनी चाहिए फर्स्ट एड रीड करने की. वरना अगर आप हर चीज पे ना डिटेल देखने बैठ जाओगे ना कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज़ नॉलेज बहुत सारा है एंड यू हैव टू बी प्रिसाइज अबाउट योर नॉलेज. कुछ चीजें जो सॉलिड मेमोरी है और कुछ चीजें जो समझने की है. अब हिस्टोन एसिटाइलेशन जो है इन इटसेल्फ ये समझने की चीज है. वो उसमें क्या है,
एसिटाइल इज अ नेगेटिव ग्रुप एंड हिस्टोन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव, राइट? तो जब एसिटाइलेशन करोगे हिस्टोन की तो हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जब हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो डीएनए के साथ उसका बॉन्ड का जो कनेक्शन था वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, एंड इट विल रिजल्ट इन रिलैक्स्ड डीएनए, और डीएनए जो होगा वो लेस कॉइल्ड हो जाएगा। जब वो लेस कॉइल्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली वो यूक्रोमेटिन बन जाएगा, और यूक्रोमेटिन जो है वो मोर एक्सप्रेस्ड होता है। तो ये अभी कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपने समझनी की, ये चीज आपको समझ आ गई। बाकी ये थायराइड वाली जो थी, दिस वाज सॉलिड फैक्ट जो आपको याद करना था। तो दैट्स हाउ यू विल डील विद द बायोकेमिस्ट्री थिंग। अच्छा, ये चीज हमने कवर की यहाँ पे। फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स में यू नो कि प्यूरिन्स क्या होती हैं, पायरिमिडीन्स क्या होती हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में आपको ये रेड रेड चीजें, रेड हाइलाइट्स नजर आएंगी, ठीक है ना? तो एक तो रेड हाइलाइट्स का मतलब ये होता है कि एक तो निमोनिक को इंडिकेट करते हैं कि जहां पर रेड हाइलाइट्स है, इट मींस दीस आर सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी टूल्स फॉर यू, ताकि आप इजीली इन चीजों को रिमेंबर कर सको। सेकंड थिंग, जो रेड हाइलाइट्स में चीज होती है, इट मींस कि दैट दीस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इन चीजों को आपने भूलना नहीं है। यू हैव टू कीप देम विद यू। मतलब आपने अभी पढ़ना है या 10 दिन बाद पढ़ना है, 20 दिन बाद पढ़ना है, आप जब भी पढ़ो आपके माइंड, मतलब द मेन गोल इज कि आप एग्जाम में बैठे हो तो आपके माइंड में हो कि प्यूरिन एडेनिन है और गुआनिन है, और पायरिमिडीन क्या है, साइटोसिन है, यूरेसिल एंड थायामीन। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जाम, या जब आप एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हो। तो ये रेड चीजें उस चीज को इंडिकेट करती हैं। बाकी स्ट्रक्चर्स वगैरह याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीस लॉन्ग स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग। देन फिर उसके बाद यू हैव दिस de novo pyrimidine and purine synthesis। अच्छा, जिन लोगों ने लॉन्ग बुक्स पढ़ी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो दे नो कि प्यूरिन पायरिमिडीन के बायोसिंथेसिस और इन सब पर पूरा पूरा एक चैप्टर होता था, और वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिटेल दी होती थी। बट यहाँ पर इन्होंने बस ये दो ग्राफ्स, सॉरी फिगर्स बना के पूरे सिंथेसिस को और पूरी सबको एक जगह इन्होंने कंपाइल किया हुआ, मतलब रखा हुआ। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप इसका एक रफ माइंड मैप अपने माइंड में रखो कि ग्लूटामीन है, फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है, फिर प्रोटिक एसिड बनता है, ओके ठीक है, फिर आगे यूडीपी यूएमपी, डोंट नीड टू रिमेंबर दैट। लेकिन वो स्टेप जिसमें इन्होंने किसी एंजाइम की बात की हुई है, किसी ड्रग की बात, लिफ्लोनामाइड की बात की हुई है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था स्टेप 1 में कि लिफ्लोनामाइड जो है, मतलब वो लॉन्ग पूरी स्टेटमेंट दी हुई थी और दिया हुआ था कि ये बंदा लिफ्लोनामाइड यूज कर रहा है, और फिर इस तरह पूरा सिनेरियो दिया हुआ था, एंड देन वो पूछा हुआ था कि इसमें कौन सी चीज है जो, मतलब ओरोटिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि ओरोटिक एसिड जो है वो कौन सी चीज में इंक्रीज हो रहा है, कौन सी चीज में मतलब अफेक्ट कर रहा है। तो ओरोटिक एसिड इज आल्सो इन्वॉल्वड इन योर ओरोटिक एसिड यूरिया और दूसरी चीजें, तो वहां से मतलब को लिंक करके दो टॉपिक्स क्वेश्चन दिया हुआ था। लेकिन यह है कि अगर मुझे याद ना होता कि लिफ्लोनामाइड कार्बोमाइल फॉस्फेट की ओरोटिक एसिड में कन्वर्जन को इनहिबिट करता है, तो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि आपने चीजों को कैसे याद रखना है, कि जो जो चीजें फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है या जो एंजाइमेटिकली इंपॉर्टेंट है, उन स्टेप्स को आपने माइंड में रखना है और याद रखना है कि अच्छा ये इससे बन रहा है, ये इससे बन रहा है। अब उसमें भी दो तरीके हैं। एक तो आपकी अगर सिंपल मेमोरी अच्छी है तो सिंपल क्रैम कर लो चीजों को, लेकिन 99% लोगों में इस तरह होता है कि वो भूल जाते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, तो मे बी अगर ये तरह याद करूंगा कार्बोमाइल और ओरोटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो आई विल फॉरगेट इट इन लाइक 1 डे और 2 डे में भूल जाऊंगा इस चीज को। तो अब क्वेश्चन इज कि हाउ टू रिटेन इट इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आप इस तरह याद कर सकते हो कि जिस तरह मैंने इसको याद किया था एलओसी से, लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, तो मैंने एलओसी से याद रखा हुआ है, लिफ्लोनामाइड, ओरोटिक एसिड, कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट मतलब ये लिफ्लोनामाइड जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट की ओरोटिक एसिड में कन्वर्जन को इनहिबिट करती है। तो दैट वाज माय वे टू रिमेंबर दिस होल 3 स्टेप्स, और ये मतलब मेरे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया था, एंड आई स्कोर्ड अ सॉलिड मार्क इन दिस क्वेश्चन। तो आप डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो कि आपको चीज कैसे याद होती है। आइदर यू गो वेल विद नेमोनिक्स, तो नेमोनिक्स बनाओ, अगर चार्ट्स या ग्राफ्स वो फ्लो चार्ट्स बनाने से अच्छे से याद होता है तो फ्लो चार्ट्स बना लो, दैट्स ऑल अप टू यू। बट ये है कि इनको आपको लॉन्ग टर्म में रखना है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक दो दिन के लिए याद रखना है फिर भूल जाना। तो लाइक व्हेन यू आर स्टडीइंग इन वेरी स्टार्ट, ट्राई टू इन्वेस्ट सम टाइम इन मेकिंग सम मेमोरी टूल फॉर योरसेल्फ, या कोई इस तरह का अपने माइंड में लिंक अप कर लो चीजों को, ताकि वो आपको फिर भूलें। ओके, सो अब ये पूरा था। अब जब मैं एग्जाम की रात थी तो मैंने एग्जाम की रात को ये वाला ये जो दो फिगर्स बनी हुई हैं इनको देखा था, और बिलीव मी इस फिगर को मैंने तकरीबन 200 से 300 दफा अपनी नजर से गुजारा होगा, बट स्टिल एट वो एग्जाम की रात वाले दिन फिर भी मुझे मतलब जो मेन चीजें थी वो तो याद थी, लेकिन बाकी जो डिटेल स्टेप्स हैं ना, लाइक यूएमपी यूडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, यूडीपी जो है डीयूडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, आई वाज फॉरगेटिंग दिस। अच्छा, पिक्चराइज, यस पिक्चराइज इज गुड। आई डिडंट पर्सनली यूज पिक्चराइज, बट इफ यू थिंक यू हैव अ वेरी यू हैव सम मेमोरी प्रॉब्लम, या फिर इफ यू आर नॉट एबल टू इमेजिन थिंग्स और मेक मेमोरीज फॉर योर ओन सेल्फ, देन आई वुड से कि यू कैन गिव इट अ ट्राई। पिक्चराइज, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग पिक्चराइज इज गुड, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ यू थिंक इफ इट वर्क फॉर यू। ये वाली चीज जो है ट्रायल एंड एरर वाली है, कुछ लोगों के लिए काम करती है, कुछ लोगों के लिए नहीं करती, तो गिव इट अ ट्राई एंड सी इफ इट वर्क्स, तो गो अहेड विद इट, एंड इफ इट डजंट तो लाइक ट्राई सम अदर टेक्निक्स। अच्छा, ये फिर उसके बाद अब वो कहते हैं ना कि इंटीग्रेटेड है सारा, जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी। अब ये देखें, ये हम पढ़ तो बायोकेमिस्ट्री रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारी ड्रग्स आई हुई हैं। ये ड्रग्स आपको एंटी कैंसर वाले टॉपिक में भी देखने को मिलेंगी। ये ड्रग्स, ये जो आगे मेथोट्रेक्स, जेरोट्राइमेथोप्रेम और ये सारी हैं, ये आपको एंटी बैक्टीरियल में भी देखने को मिलेंगी। सो द थिंग्स आर रियली इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप एक सब्जेक्ट को छोड़ दो, उठाओगे, वो चीज मुझे बाद में तंग नहीं करेगी। अगर अभी इसको स्किप करके जाओगे तो ये आपको बाद में फिर दोबारा मिलेगी, फिर दोबारा मिलेगी। सो इट कीप्स ऑन रिपीटिंग ऑन योर फर्स्ट एड, एंड इवन मतलब वो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपस में कोलिंग कर रहे होते हैं। ये सारी ड्रग्स हैं इससे रिलेटेड, एंड दिस इज द सॉलिड मेमोराइजेशन। यू हैव टू मेमोराइज दीस थिंग्स अप, एंड मतलब आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस पेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, नेक्स्ट में प्यूरिन सैल्वेज पाथवे। अब ये पूरा पाथवे, इसमें ना आपको सिर्फ 2 से 3 चीजें याद रखने की जरूरत है। वो ये कि जीएमपी का क्या रोल है, मतलब जीएमपी जो है वो गवर्निंग में कन्वर्ट हो रही है, जो नेगेटिव साइन वाली चीजें हैं, ये वाली माइंड में होनी चाहिए थोड़ी सी। उसके अलावा ये जो जहाँ पे दो एडीए है और एससीआईडी की बात हो रही है, इसके बारे में पता हो। बाकी हाइपोजेंटीन एंड जेंटीन, अब यू वोंट बिलीव, जब आप ये वाला पूरा एक टेबल कर रहे हो ना, ये एक इमेज कर रहे हो ना, तो इससे आप अपने 4 टॉपिक्स कवर कर रहे हो। एक लीशनियल सिंड्रोम कर रहे हो कवर आप, जो कि जेनेटिक्स में है। एक आप यहाँ पर एडीए कवर कर रहे हो, दैट इज एडेनोसिन डिहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी, ये आपका जो है नीचे भी लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, और एससीआईडी ये आपका इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है, और ये जो एलोपेरिनोल और फेबोक्सोस्टेट जो है, ये वाली ड्रग्स आपकी एमएसके में लिखी हुई है। तो जब आप एक चीज पढ़ रहे हो ना, तो यू डोंट नीड टू थिंक कि आप वही सब्जेक्ट कर रहे हो, आप इंटीग्रेटेड वे में चीजें कर रहे हो। तो यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स व्हाइल डूइंग अ सिंगल ग्राफ और सिंगल थिंग। लेकिन उसमें भी है कि आप सिर्फ वही पॉइंट्स करो जो कि इस तरह हाइलाइटेड है, जो मतलब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला। यू डोंट नीड टू रिमेंबर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होता है, वो फिर फ्री बेस में कन्वर्ट होता है। दिस इज द वेस्ट ऑफ योर मेमोरी एंड योर ब्रेन स्पेस, तो डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन मेमोराइजिंग दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट इज एडेनोसिन डिहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी। अब ये पैथोलॉजी आ गई। तो पैथोलॉजी जहां भी आपको देखने को मिले ना, तो इट इज सुपर हाई, आपको उससे रिलेटेड हर पॉइंट आना चाहिए। यू डोंट हैव टू स्किप दैट। अभी लिखा हुआ है मेजर कॉज ऑटोसोमल रिसेसिव एससीआईडी। अभी ऑटोसोमल रिसेसिव है, अभी यहाँ पे जेनेटिक्स का मैंने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट एड इज काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड बुक। ये सर नहीं है कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप ऑल द वे लॉन्ग एक ही टॉपिक पढ़, वो डिफरेंट चीजों को आपस में इंटरलिंक करता है, कनेक्ट करता है, एंड यू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल स्टडीइंग अ सिंगल टॉपिक। तो ये चीज आपने माइंड में रख के फर्स्ट एड को खोलना और पढ़ना। अच्छा, फिर उसके बाद लीशनियल सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि जो चीज रेड में होती है, इट मींस इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, एंड ये एक तरह का नेमोनिक भी है, और जो भी चीज है अभी इसमें हाइपरयूरेसिमिया है, गाउट है, एग्रेशन, सेल्फ म्यूटिलेशन है, रेड ऑरेंज क्रिस्टल्स है। अब ये है कि अब लीशनियल सिंड्रोम आप पढ़ोगे सारा, आपको समझ आ गई है, वेल एंड गुड, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको
उसको जाकर गूगल पे देख लो और वहाँ पे देखो कि इससे रिलेटेड क्या चीज आ रही है, वहाँ पे समझ आ रही है गुड इनफ, वहाँ भी समझ नहीं आ रही, फिर यूट्यूब पर जाकर लिखो कि लीश निहान सिंड्रोम, 5 मिनट की वीडियो आएगी, 2x लगाकर देखोगे, 2 मिनट में 2.5 मिनट में कवर हो जाएगी आपकी वीडियो, लेकिन उससे आपका एक बेस बन जाएगा और आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा उस चीज से रिलेटेड, एंड दैट्स व्हाट यू वांट। इस तरह नहीं है कि आपको प्रॉपर एक लेक्चर देखना है और उसमें एक चीज को नोट करना है और फिर उसको याद करना है। तो ये कन्वेंशनल जो आपका माइंडसेट होता है ना, जो प्रॉप्स वाला होता है, उससे हट के आपको थोड़ा बहुत यूएसएमएल करना पड़ता है, बिकॉज़ इट इज अ लॉट ऑफ नॉलेज। आप एक चीज पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। मतलब एक पॉइंट पे आप एक चीज पढ़े होगे, नेक्स्ट लाइन पे आप किसी और चीज जगह मूव करके गए हुए होगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह की बनाओ कि आपने कोई एक वर्ड पढ़ा है, कोई चीज पढ़ी, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्विकली उसको समराइज कर लो अपने लिए माइंड में। अब लीश निहान मैंने पढ़ा, मेरे माइंड में आ गया कि अच्छा इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इसमें डाउट होगा, इसमें सेल्फ म्यूटिलेशन होगा, एंड दैट्स इट फॉर मी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किस तरह आएगा, एक पर्सन है, एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके डायपर में ऑरेंज क्रिस्टल्स हैं, एंड वो जो है अपने नेल्स को बाइट कर रहा है, दैट इज सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर। वो मतलब उसको इस तरह पैराफ्रेज कर सकते हैं आप। और साथ में दिया हुआ होगा कि ही हैज BUN टू क्रेटिनिन रेशियो दैट इज मोर देन 20:1, इसका मतलब हाइपरग्लाइसीमिया या यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा है, एंड वो बोलेंगे के साथ बेबी जो है वो एटोनिक है या बेबी इज फ्लैसिड या जो भी आप बोलो, दैट इज टेंस मसल से रिलेटेड कोई भी वो इस तरह की चीज देंगे, एंड फिर वो नीचे ऑप्शंस में देंगे कि जो डिजीज बंदे को है, इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, इट इज एक्स लिंक्ड। तो दैट्स हाउ यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन यूएसएमएल। तो उसका आंसर ये होगा कि इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। मतलब ये नहीं होगा कि आपको मतलब आपने सिम्पल्स पढ़े और आपको वो पढ़ के आंसर आ जाए। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन होता है वो सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन होता है, लाइक आपने डायग्नोस कर ली चीज, अब वो आपसे डायग्नोसिस से रिलेटेड कोई और चीज पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो किसी और डिजीज से रिलेटेड आया था, और वो डिजीज जो थी वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव थी। अब उन्होंने दिया हुआ था कि इस डिजीज से रिलेटेड कौन सी और डिजीज है, तो वो किस ऑप्शंस में उन्होंने दूसरी एक्स लिंक्ड डिजीज के ऑप्शंस दिए हुए थे। सो दैट्स हाउ यू विल गेट क्वेश्चंस ऑन योर यूएसएमएल और ऑन योर यूएड। तो इस चीज के लिए आप तभी रेडी हो सकते हो कि जब यू नो सम सॉलिड फैक्ट्स अबाउट एवरी सिंगल टॉपिक, आपके माइंड में सॉलिड फैक्ट्स होंगे, तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आगे मैंने क्वेश्चन की स्लाइड्स भी बनाई है, तो वी गेट टू दोस क्वेश्चंस, बट यहां पर ये आपके लिए टेक अवे था कि पैथोलॉजी को कैसे डील करना है। फिर यू हैव जेनेटिक कोड फीचर्स, और ये जेनेटिक्स आ जाता है सारा। इसके लिए बीएनपी की वीडियोस भी हैं, और यूट्यूब पे एक बल्क में फुल एक वीडियो होती है जिसमें वो डिफरेंट जेनेटिक टर्म्स एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करते हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा बट आई वुड सजेस्ट कि रैंडी नील है, खैर वो बाद में देखेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन ओरिएंटेड उसकी जो वीडियोस होती हैं, मतलब 2 मिनट की 3 मिनट की, तो उससे भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड, वो भी आप जेनेटिक्स के लिए देख सकते हो। तो दीस आर द पॉसिबल सजेस्टेड रिसोर्सेज फॉर योर जेनेटिक्स। अच्छा, अब इसमें जेनेटिक कोड है, लाइक अनएम्बिगुअस है, डीजेनरेट है, रिडंडेंट है, कॉमनलेस है, ये आपने पढ़ी हुई होती हैं चीजें, लेकिन ये है कि आपने कंपाइल फॉर्म में नहीं पढ़ी होती। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे मिलती हैं। इसीलिए आई सजेस्ट कि फर्स्ट एड इज अ वेरी आइडियल बुक। उसकी रीजन ये है कि जो इसका फॉर्मेट है वो बहुत आइडियल है। अब यहाँ पे सारी टर्म्स जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं उन्होंने एक जगह लिखी हुई होंगी। फॉर इंस्टेंस यू आर इन द एग्जाम और आपका कोई क्वेश्चन आया कि पूरी में सिनेरियो दिया हुआ है और फिर बताया हुआ है कि अगर अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड है जिसको मल्टीपल कोडॉन्स इंपोर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है, इस तरह का फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू आया। अब वहाँ ऑप्शंस में क्या है, यूनिवर्सल है, कॉमनलेस है, अनएम्बिगुअस है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एपिजेनेटिक्स। तो आप मतलब इनहेरिट, मतलब आप मेंटली जो है खुद ब खुद इस चीज को एलिमिनेट कर दोगे कि यार जो मैंने जेनेटिक कोड का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर एपिजेनेटिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं था। जब वहाँ पर एपिजेनेटिक्स मैंने नहीं पढ़ा था, तो इट मींस एपिजेनेटिक्स कुड नॉट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो आप फर्स्ट एड को रीड करते हो, जो इसका फॉर्मेट आप फॉलो करते हो ना, तो ये चीज आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन ऑप्शन एलिमिनेशन एंड ऑन रीचिंग द राइट आंसर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि फर्स्ट एड, व्हाई द फर्स्ट एड इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजिंग इट एज अ प्राइमरी रिसोर्स। अच्छा, फिर उसके बाद अभी डीएनए रेप्लिकेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये डायग्राम बनी हुई है, राइट? तो अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो मतलब उन्होंने पूरा सिनेरियो दिया हुआ होता है और कोई एक एंजाइम का फंक्शन दिया हुआ होता है और डायग्राम में पॉइंट आउट करके दिया हुआ होता है कि ए है, बी है, सी है, ये कौन सा एंजाइम है। जो लोग कन्वेंशनल सिस्टम में है तो वो लोग बिल्कुल नॉन फोटोग्राफिक मेमोरी के मतलब से यूज्ड होते हैं। मतलब उन्हें पता होता है कि हमारे पेपर में कोई फिगर नहीं आएगी, कोई इस तरह की डायग्राम नहीं आएगी, कुछ इस तरह नहीं होगा, तो वो बहुत यूज्ड होते हैं स्टेटमेंट वाली चीजों से। लेकिन ये है कि यूएसएमएल में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि डायग्राम्स भी वो दे रहे होते हैं, पिक्चर्स भी दे रहे होते हैं, एंड ग्रॉस एनाटॉमी एंड एवरीथिंग दैट्स देयर इन द एग्जाम ना। तो ये उसके लिए डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो अबाउट एंजाइम्स एंड डिफरेंट थिंग्स इन हियर। अच्छा, फिर उसके बाद डीएनए रिपेयर का टॉपिक है, एंड दिस इज वन ऑफ द हाई यील्ड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, डिफेक्टिव इन ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर विद BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन एंड फेनकोनी एनीमिया। अब ये जो चीज है ना, ये सॉलिड फैक्ट है, अभी आपको फिर याद करना है। इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों है, कैसे है, एंड हाउ इट्स हैपनिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। बाकी ये जो ऊपर वाली चीज है ना कि इसमें इंटैक्ट होता है, दो आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझने वाली चीज है। तो मेक श्योर कि आप जो समझने वाली चीज है उसको समझो, और जो समझने वाली चीज नहीं है उसको याद करो, रटा लगाओ, क्रैम करो एंड मेमोराइज इट। मेक मतलब ये चीज है कि आपने शुरू से बना लो कि जो चीज याद करने वाली है उसको, उस पे उसका कॉन्सेप्ट समझने में टाइम नहीं जाया करना, और जो कॉन्सेप्ट वाली है उसको मतलब जल्दी जल्दी गो थ्रू नहीं करना, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये यहाँ पर चीजें थी। फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड से रिलेटेड चीजें हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन है, यहाँ पे जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, राइट? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम क्या होता है, जिसमें लाइक स्किन की डिजीज होती है, एंड इट इज बिकॉज़ ऑफ द यूवी एक्सपोजर, एंड वो इसका सिनेरियो आता है, लाइक आई हैव सीन क्वेश्चंस इसमें जीरोडर्मा पिगमेंटोसम का सिनेरियो आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट अकर्स इन G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब इसमें थोड़ी सी लॉजिक है कि G1 फेज में क्यों होगा, क्योंकि G1 फेज में आपका जो प्रोसेस हो रहा होता है, डीएनए सिंथेसिस रिलेटेड प्रोसेस जो हो रहा होता है वो इन्वॉल्व होता है, और उसकी जो स्क्रूटनी हो रही होती है, जो कि खराब डीएनए होता है वो रिपेयर हो रहा होता है, एंड थिंग्स आर रिलेटेबल। तो ये G1 फेज आप इस तरह माइंड में रख सकते हो। फिर जीरोडर्मा पिगमेंटोसम पैथोलॉजी आपके माइंड में होनी चाहिए सारी। सो अभी डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स अभी समझने वाली चीजें, यू हैव टू मतलब समझना है इनको। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा पर टेक्स्ट पढ़ने से, यू कैन गो टू यूट्यूब, यूट्यूब पे समझ नहीं आ रहा तो अच्छा, एक और चीज भी है, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स स्पेशली बायोकेमिस्ट्री में आप उनको समझने की कोशिश करोगे, यूट्यूब से करोगे, एवरीथिंग आप कर लोगे, स्टिल वो आपको कंफ्यूज करेंगे। अब उन टॉपिक्स के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट इज के फर्स्ट गो में उनको छोड़ दो। लाइक अगर एक चीज बहुत ज्यादा आपके मतलब मुश्किल लग रही है ना और नहीं हो रही, तो डोंट नीड टू टेक इट ऑल वे विद यू, मतलब 24 घंटे आप उसके बारे में सोचते रहो कि अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है, नहीं समझ आ रही, लीव इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। जब नेक्स्ट गो करो, आप अपनी रिवीजन करो, तब उस टॉपिक को ले लो, तभी समझ नहीं आ रही तीसरे टाइम पे कर लो। तो इस तरह नहीं है कि आपने ए टू जी हर चीज करके फिर नेक्स्ट पे मूव करना है। अगर कोई चीज समझने के बावजूद मतलब जो आपकी ट्राई थी, आपने 3 चीजें देखी, आपने पढ़ के देखा, आपने गूगल पे सर्च करके देखा, आपने यूट्यूब वीडियो देखी, फिर भी एक चीज समझ नहीं आ रही, तो इट मींस कि वो चीज आपके मतलब आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा फॉर द मोमेंट। तो डोंट नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट थिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, और बाकी जब दोबारा रिवाइज करो दोबारा उसको पढ़ लो, क्योंकि जब वो चीज आप 5 दफा 6 दफा 7 दफा पढ़ोगे ना बार बार, माइंड आपकी नजर से गुजरेगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपको एक तरह से इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी खुद ब खुद ही। तो इस चीज पे आपने बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना। अच्छा, मिसमैच रिपेयर के एग्जांपल पे लिंच सिंड्रोम है। लिंच सिंड्रोम इज अ बिग टॉपिक इन जीआईटी। जीआईटी में लिंच सिंड्रोम से रिलेटेड पूरा एक पेज पे टॉपिक फुल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ वहां पे भी आपसे पूछते हैं कि लिंच सिंड्रोम में क्या मसला है, तो मिसमैच रिपेयर, दैट इज द फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट लिंच सिंड्रोम। बाकी जो डिटेल होगी वहां पर जाकर आप डिटेल में पढ़ लोगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और क्या पॉसिबल टाइप्स एंड एवरीथिंग।
नेक्स्ट यू हैव म्यूटेशंस इन डीएनए, इसमें ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन अगर सिंपल वो है लाइक डेफिनेशंस हैं, तो यू हैव टू हैव द आइडिया अबाउट दैट ट्रांजिशन का क्या मतलब है, ट्रांसवर्जन का क्या मतलब है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैं अपने आप को मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर करता था कि फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक बेस पेयर है और इस बेस पेयर में जो बेसिस है वो चेंज हो गई है, तो एम आई एबल टू रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांसवर्जन हो रही है। इफ यस देन आई एम गुड टू गो विद दिस टॉपिक, और मुझे इसको ज्यादा डिगिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट और सॉल्व इट इन द एग्जाम, अगर इस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और मुझे नहीं समझ मतलब आई कैन नॉट जज कि आइदर इट इज ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन, इट मींस आई एम नॉट गुड विद द टॉपिक। मैं फिर इसमें डिगिंग डीप करूंगा, इसको यूट्यूब पे सर्च करूंगा या बीएनडी की वीडियोस देखूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो ये आपने एक आपके लिए चेक पॉइंट है कि हाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक, आपको कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया। सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन है, साइलेंट म्यूटेशन है, मिसेंस म्यूटेशन है, नॉनसेंस म्यूटेशन है। अब इसका बेसिक कांसेप्ट क्या होता है ये समझने की जरूरत है। अच्छा, इन दिस वेबिनार आई रियली वांटेड टू डिस्कस द पॉइंट्स, बट आई गेस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 3 or 4 hours to discuss every single point, so that's not possible, but I really intended to do that. अब I don't know कि you people are getting the things this way or not. एंड इफ यू वांट कि हम लोग हर चीज को थोड़ा और डिटेल में करें, लाइक जो टॉपिक चल रहे हैं उसको डिटेल में करें, तो आई कैन डू दैट। बट यह कि ऑल्दो मैं कर भी दूंगा, फिर भी आपको फर्स्ट गो में समझ नहीं आएगी चीजों की, अनलेस यू रीड इट योरसेल्फ, और साथ साथ आप अपना अगर लेक्चर्स ले रहे हो तो लेक्चर्स भी यूज करो, और यू विल है तो यू विल भी थोड़ा करो, देन यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट द बायोकेमिस्ट्री थिंग। मैं सुपरफिशियली चीजों को बता सकता हूं। देन यू हैव अदर म्यूटेशंस, ये सारी भी याद करने की है। फिर इसमें एग्जांपल एडिशन, मसल डिस्ट्रॉफी, टेस्ट एक्सिस, सिस्टिक प्रोसेस, इसके लिए नमूने बना लो कोई। मैंने इसके लिए नमूने बीसीटी बनाया था एंड दैट्स हाउ आई रिमेंबर दिस। तो अब इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें लॉजिक क्या है और क्या नहीं है क्या नहीं। यू हैव टू मेक नमूने फॉर योरसेल्फ एंड मेमोरी ग्रास्प एंड टूल्स फॉर योरसेल्फ व्हाइल यू आर डूइंग द फर्स्ट ईयर। अच्छा, नेक्स्ट लैक ऑप्टॉन वाला कॉन्सेप्ट है ये। अभी देखिए सारे टॉपिक्स काफी सेग्रीगेटेड हैं, मतलब आपस में कोई लिंक नहीं कर रहे, एक चीज की बात कर रहा है, अगला दूसरी चीज की बात कर रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री इस लिहाज से बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अब यहाँ पे आपको अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट समझोगे आप सारा एंड दिस एवरीथिंग। अच्छा, फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये फिर दोबारा से चीजें आ जाती हैं, प्रोमोटर क्या है, एनहांसर क्या है, साइलेंसर क्या है, एपिजेनेटिक्स क्या होती है। यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल कि अगर कोई चीज आई है, फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि चेंजेस मेड टू द जीन एक्सप्रेशन व्हाट कुड बी द पॉसिबल प्रोसेस, तो यू मस्ट नो कि इट इज एपिजेनेटिक्स। इस हद तक आना चाहिए आपको चीजों के बारे में। बाकी ये है कि जो चीज यहाँ पर लिखी है दैट इज मोर देन इनफ। अगर गूगल में आपको एपिजेनेटिक्स एग्जांपल्स वो बता रहा है, डोंट नीड टू रिमेंबर देम, बिकॉज़ जो चीज फर्स्ट में लिखी है वो मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, उससे कम भी करने की जरूरत नहीं। देन आरएनए प्रोसेसिंग का प्रोसेस है। अभी जब आप इसको अपने प्रोसेस एग्जाम के पेपर में बैठते हो तो ये टॉपिक जो है आपको इतनी डिटेल में वो बताती है, ए टेल ऐड हो रही है, इस जगह पर ऐड हो रही है, इस जगह ऐड हो रही है, यू डोंट नीड टू डू दैट। जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है बस उसको याद रखो, जो चीज यहाँ पर नहीं है डोंट नीड टू गो फॉर दैट थिंग। फिर यू हैव आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, अभी जो रेड में है तो अगेन इट शोस इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसको आप मिस नहीं करवा सकते हो, तो मतलब ये याद करना ही करना है। तो ये फिर उसमें उन्होंने ये दिया हुआ है। देन प्रोकैरियोट्स हैं, देन इंट्रॉन्स वर्सेस एक्सॉन्स हैं। अब ये इंट्रॉन्स को याद करने के लिए इन्होंने नेमोनिक टाइप बनाया हुआ है, इंट्रॉन्स फॉर इंटरवीनिंग सीक्वेंस एंड एक्सॉन्स फॉर एग्जिट। मैंने एक्सॉन्स को इस तरह याद रखा हुआ था कि एक्सॉन्स आर एसेंशियल, ई फॉर एक्सॉन, ई फॉर एसेंशियल, सो एक्सॉन आर इंपॉर्टेंट, आर एसेंशियल, व्हाइल द इंट्रॉन्स आर नॉट एसेंशियल। तो ये इस तरीके से फिर इसका कांसेप्ट एंड वंस यू रीड इट यू विल गेट टू नो कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। स्प्लाइसिंग ऑफ pRNA, another difficult topic for me, ये वो टॉपिक था मेरे लिए जिसको मैं मतलब मुश्किल लगता था मुझे, तो मैं इसको मतलब छोड़ देता था, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इसको मैंने लाइक 6 or 7 टाइम पे जब पढ़ा था, देन आई वाज एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड रिमेंबर दिस टॉपिक। अच्छा, देन ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है, तो अब जो आपकी अपनी डिटेल बुक्स हैं उनमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ होगा। यहाँ पे बस आपको जो चीज ये हाईलाइटेड दी हुई है ना, बस वो चीज आप याद रखो, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं डोंट नीड टू रिमेंबर दोस थिंग्स, ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। एंड देन फिर ये दोबारा से स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन है, प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक है, सेंट्रल डोग्मा और ये वाले प्रोसेस जो है, ये आप एक वीडियो यूट्यूब पे देखोगे उसमें फुल एक्सप्लेन हुआ होता है वाया योर वो क्या होते हैं 3D जो एनिमेशन है उनके थ्रू होता है, एक्सप्लेन हुआ होता है, आप वो देख लो। मैंने बीएनबी देखा था पर्सनली, मुझे बीएनबी अच्छा लगा था, और साथ में मैंने यूट्यूब पे वो एक फुल सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस एंड एवरीथिंग वो एक एनिमेशन थी वो भी देखी थी मैंने, लिटरली वर्क वेल फॉर मी। वो देखकर यहाँ पर जो रेलेवेंट चीजें थी याद करने वाली वो चीजें मैंने याद कर ली एंड दैट वाज मोर देन इनफ। बाकी जब आप साथ में यू विल करते हो तो यू विल गेट टू नो कि जो चीजें हमने याद की हुई हैं उनमें से भी कौन सी चीजें जो बार-बार रिपीट हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में पॉसिबली आ सकती हैं। तो दैट्स हाउ यू लर्न इन द वे एंड थ्रू आउट द प्रोसेस यू लर्न इन द वे। नेक्स्ट यू हैव टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ट्रिमिंग, कोवलेंट अल्टरेशन, चैपरॉन प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग। तो ये चीजें जो हैं ये मतलब सॉलिड फैक्ट्स हैं जो आपको मतलब याद रखने हैं, माइंड में रखनी है। अच्छा, फिर सेलुलर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सेस, ट्यूमर सप्रेसर्स, क्योंकि ये जब आप हेमाटोलॉजी पढ़ोगे वहां पर भी आपको काम आएगा, तो मेक श्योर कि यू वॉच अ वेरी गुड वीडियो ऑन दैट। अच्छा, मैं आपको सिर्फ अपने प्लस नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ अपनी वो लाइक वो ड्रॉबैक्स भी बता रहा हूं कि व्हाट आर द थिंग्स आई डिडंट और मैं आई विश आई वुड हैव डन। उनमें से एक ये भी है कि ये वाला टॉपिक जो था इसको मैंने बहुत सुपरफिशियली पढ़ा था, मतलब बस इसको मैंने मेन चीजों को याद कर लिया था, बट एट द एंड व्हेन आई वाज डूइंग द ऑन्कोलॉजी और सेल ट्यूमर्स एंड एवरीथिंग, आई रियलाइज्ड कि दिस इज द टॉपिक आई हैड टू गो इन मोर डिटेल, ताकि मुझे वहां पर ये चीज समझ आती। तो कुछ चीजें होती हैं जो आप ट्रायल एंड एरर से भी सीखते हो, तो या दैट्स हाउ इट इज। जनरल आइडिया ऑफ पीएनबी वर्ल्ड इन द सेंस ऑफ वर्ड्स जनरल टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, जब आप सर्च करते हो ना यूएसएमएल, आप पता है क्या सर्च करोगे, लाइक आप सर्च टैग क्या होगा, दैट वुड बी यूएसएमएल स्टेप 1 बायोकेमिस्ट्री एंड आगे आप लिखोगे फर्दर टॉपिक के बारे में, तो आपको वीडियोस खुद ब खुद आ जाएंगे। फिर वहां पे आप वही वीडियो चूज करोगे जो आपकी यूएसएमएल स्टेप 1 रिलेटेड है। मुझे किसी ने इन चैनल्स के बारे में बताया नहीं था, आई यूज्ड टू यूज दीस टैग्स एंड आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ वीडियोस फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स एंड जो चीज मुझे सूट करती थी, जो चीज मुझे समझ आती थी, मैं वो चीज देखता था। तो इट्स नॉट लाइक कि देयर इज सर्टेन पर्टिकुलर चैनल जो आपने देखना ही देखना है और जो आपने नहीं देखना ही देखना। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि एसेंशियल आपका बीएनबी है, बीएनबी को आपकी चीज मिस नहीं करवाता यूएसएमएल रिलेटेड, फर्स्ट एड रिलेटेड, तो वो आपने करना ही करना है। बाकी उसके अलावा जितने भी चैनल्स हैं दैट इज ऑल अप टू यू। इफ यू थिंक यू आर गुड विद दैट चैनल, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एक्सप्लेन इन दैट चैनल, तो यू शुड गो फॉर दैट। जिस तरह अभी यहाँ पर जो एनिमेशन की बात हुई, आई गेस इट वाज मेड साइज बाइट चैनल का नाम था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद दैट, तो वो चैनल था, उसमें मैंने देखा था। साथ एक और भी चैनल था, आई कैन रिकॉल द नेम ऑफ दैट चैनल। तो ये आप जो है सिंपली सर्च टैग यूज करोगे तो आपको रेलेवेंट यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू गेट दोस थिंग्स। ओके।